Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your geography first chapter, natural resource. Sorry, topic is resource. In this topic, we have already read about resource and their use, their category, behalf of origin, behalf of distribution, behalf of development, level of development, and we have discussed the actual resource, potential resource. We have also discussed according to origin, biotic resource, abiotic resource, according to the categories, natural resource, the renewable resource, non-renewable resource, and then after we also read about that the actual resource, potential resource, biotic resource, abiotic resource, renewable resource, non-renewable resource, and human made resource and human resource. We have discussed all these in our previous video. माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को ठीक ठीक प्रकार से समझा। हमने एक एक पॉइंट्स पे विस्तार से बात की। हमने देखा कि किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स की कई सारी कैटेगरीज हैं। नेचुरल रिसोर्स को कई सारे डिवीजन में बांट के हम अध्ययन कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर अस to categorize them in various groups. If we categorize them, it is very easy to understand about natural resource, because behalf of distribution, behalf of origin, and behalf of their distributions, origin, and level of development, we can categorize it: potential, actual, biotic, abiotic, renewable, non-renewable. And second, that is the natural resource, and second, that is human resource. Human resource categorized in also two part: the human resource and human made resource, where we read that human resource meaning a person, if people change himself as a skilled, as a knowledgeable, as a trained, then he became the human resource. If he is not healthy, if he is not knowledgeful, if he is not technologist, if he is not skilled, point you have to consider about my four word. First, people should be healthy to become resource. People should be knowledgeful to become resource. People should be skilled to become human resource. People should be skilled to become human resource. It means whenever he will not these quality, he have not these quality, he cannot call the developed human resource. He is also resource, but is not developed resource. In my previous video, I have already told you a story of two boys, where one boy was
join school and change himself as a skilled, knowledgeable, technology-full, skilled person, and he change himself as a human resource. But second hand, we have seen their friends. He do not like to go school, use their traditional occupation like fisheries. What happened? He was undeveloped resource. He became undeveloped resource. I have told you this story in my previous video. If you will see, then you will easily consider about that. Today we will read the conservation or conserving resource. My dear student, I have already told you a story about Mona's dream. Mona was sleeping on bed. Suddenly he saw a dream. In their dream, he saw that water are dried, that earth had totally dried up, and all the trees cut down. There was no trees, no shade, and nothing to eat and drink. People were suffering and roaming. See, got stuck having seen their dream. Suddenly he awake and discussed their dream with her mother. अम्मा, क्या ऐसा हो सकता है? She asked her mother. Her mother replied, yes, of course. Can this really happen? It can really happen if you will not care about to conserve the resource. If you are not serious to protect the wildlife, centuries, wildlife, animals, nature, you will not care for others. It can really happen, her mother replied. She set an example to understand them. She told her, suppose if we are not careful them, even renewable resource can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. Using resource carefully and giving them time to get renewed is called रिसोर्स कंजर्वेशन. आपको यहाँ पे रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन याद करनी चाहिए. कहता है यदि हम संसाधनों का उपयोग केयरफुली करें, केयरफुली उनको रिन्यूएबल होने के लिए टाइम दें, तो ये हमें रिसोर्स कंजर्वेशन प्रोसेस को बताती है. और फिर कहता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एज यू आस्क दिस क्वेश्चन इन माई ऑनलाइन क्लास आल्सो, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग योर नीड्स to use resource
and also conserve them for the future is called sustainable development. These are many ways to conserving resource. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे प्राचीन मनुष्यों ने, प्राचीन काल के हमारे ऋषि महर्षियों ने विस्तार से बात की है, जहाँ पे उन्होंने प्रकृति के संरक्षण की बात की है, जहाँ उन्होंने प्रकृति के हर तत्व में डिविनिटी का आरोपण कर दिया, भगवान बनाया, वायु देवता, जल देवता, वृक्ष देवता, आकाश देवता, सूर्य भगवान, चंद्र देवता, नक्षत्र गण, पीपल देवता, हर वस्तुओं में डिविनिटी इम्पोज कर दी गई. वाई? इफ यू विल minutely observe the reason behind it, what you will find? You will find that they were very much aware of the conserving resource. They were very much aware of to protect the nature. So that's why they did it. Sustainable development, that is the main point which they focus. There are the various prayers, the hymns of Vedas, were clearly explained by the Vedic seers the importance of natural resource and their conservation. Okay, leave it. Come to the point. We have to discuss your topic, sustainable development. Sustainable development means balancing need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways. So conserving resource, each person can contribute by reducing consumption, recycling and the reusing things. Ultimately, it makes different because all of our lives are linked. What do you understand having read this paragraph? What author want to inform you? क्या कहना चाहता है आपसे लेखक? क्या बताना चाहता है आपको? कहता है यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम to get renewed is called resource conservation, and balancing your needs to conserve them the future is called sustainable development. फिर कहता है कि संसाधनों का उपयोग करने के लिए हम इन दोनों विधियों का अगर प्रयोग करें तो संसाधन रिसोर्स काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित अवस्था में हमारी नई जनरेशन को प्राप्त होंगे, मिलेंगे. संसाधनों के संरक्षण के लिए टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कई तरीके हैं. देयर आर द वेरियस वे. प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके और वस्तुओं के पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, अगर व्यक्ति उपभोग को कम कर ले, अपने कंजम्पशन लेवल को घटा ले थोड़ा सा, तो क्या करेगा? तब कंजम्पशन लेवल थोड़ा सा रिड्यूस होगी, रिसाइकलिंग करेगा उसकी, तो क्या होगा? रीयूजिंग थिंग्स अल्टीमेटली मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड. तब वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग को ये उनके कंजर्वेशन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है. लास्ट में यह विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं. उस शाम बच्चों और उसके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों के बाद, ये सब करने के बाद बच्चों ने
बड़े आनंददायक सी कहानी सुनी और फिर उन सारे बच्चों ने एक जगह असेंबल हुए और प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद उन्होंने बच्चों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियाँ, लिफाफे, खरीदारी के लिए थैले बनाए। जो पेपर वेस्ट हो रहे थे उस पेपर को उन्होंने थैले के रूप में बना करके यूज किया। फिर कपड़ों का इस्तेमाल विभिन्न तरीकों से किया गया, उस पर छपाई की गई, सफ़ेद रंग के कपड़े पे पेंटिंग्स बना करके उसका यूज किया गया। इस तरीके से बच्चों ने उस पर तमाम सारी कारीगरी की। अब बच्चों को रिसोर्स के कंजर्वेशन की बात समझ में आने लगी थी। अब वो चीज़ें जिसको वो वेस्ट समझ रहे थे, फेंक रहे थे, उन चीज़ों की रिसाइकलिंग करना उन्होंने शुरू किया। रिसाइकलिंग किन चीज़ों की उन्होंने समाचार पत्रों से और नए लिफाफे बना दिए, रिसाइकलिंग हुई। अब समाचार पत्र जो वेस्ट था उसका लिफाफा बन गया तो फिर वो रिसाइकिल के थ्रू दोबारा यूज कर लिया जाएगा। ठीक वैसे ही उन्होंने बांस की डंडियों से लिफाफे बनाए, उसमें थैले में उसको लगाया, जो बांस फेंक दिए जाते थे उसको थैले में हैंडल के रूप में इस्तेमाल किया गया, रिसाइकलिंग हो गई। इस तरीके से मोना ने कहा कि यदि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से हम रिसोर्स को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, एक और उनके दोस्त मुस्तफ़ा कहता है, अपने संसाधनों को बचाना और पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। व्हाट मुस्तफ़ा कॉल्ड? मुस्तफ़ा called या मुस्तफ़ा said to save our resource and to keep our earth alive, that is very important work for all, सभी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जेसी क्या कहती है? आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। जेसी कहती है कि अब मैं बहुत सतर्क रहूँगी, कागज़ को कभी व्यर्थ नहीं करूँगी। आप लोग भी प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, यू आर ऑल आल्सो वेस्ट वेरियस पेजेस। कॉपी के पन्ने आप फाड़ देते हैं। आपको पता है आपकी कॉपी को बनाने के लिए, जिस पे आप लिखते हैं, जिनसे किताबें बनती हैं, इन किताबों और कॉपी को बनाने के लिए कितने सैकड़ों में पेड़, 100,000 पेड़, ट्री को काटे जाते हैं। पेड़ के तनों से, उनके पत्तों से आपके पेपर बनते हैं। आप कल्पना करिए, जिस पन्ने को फाड़ के आप क्लास में फेंक देते हैं, जिस पन्ने को आप वेस्ट कर देते हैं, इट मीन्स इनडायरेक्टली आप पेड़ों को काट दे रहे हैं, आप नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट कर दे रहे हैं। तो आइए आज से ही नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करें, बचा के रखें। जैसा कि जेस्सी कह रही है कि आई एम गोइंग टू बी केयरफुल, वेरी केयरफुल not to waste paper. Many trees are cut down to make paper, she explained. Jessie, aware of that, ये पेपर पेड़ों से बनते हैं और पेपर को वेस्ट किया तो पेड़ों को काटना पड़ेगा। मैं ध्यान रखूंगा मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, इलेक्ट्रिसिटी बेकार ना हो, मुस्तफ़ा जोर से कहा। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी या बिजली, जिसको आप कॉमन भाषा में बोलते हैं, ये विद्युत जल और कोयले से बनती है। और यदि आप अपने घर में बिजली के स्विच ऑफ कर दें, घर से निकलते समय पंखे ऑफ कर दें, तो इससे बहुत सारी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगी, वेस्ट होने से बच जाएगी। और जब ये वेस्ट होने से बचेगी तो मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है?
कोयले से, वाटर से, तो हम कोयले को बचाने का काम कर सकते हैं. It is your duty that when you left your room, you have to switch off the button of the electricity board. विद्युत के सारे बटन बंद करने की जिम्मेदारी आपकी है. आज से ही तय करिए, जब भी घर से निकलिए इन चीज़ों को स्विच ऑफ करके निकलिए. अब नेक्स्ट कहता है, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्ट एट होम, सेड आशा. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस, नो डाउट. Water is very precious resource on earth. Without water, there is no existence of life. Without water, we cannot think. We cannot think about life. हम सोच भी नहीं सकते जीवन के बारे में. सो आशा कह रही है कि हम पानी को भी बचाएंगे. पानी की एक बूंद कीमती है, लेकिन आप क्या करते हैं, टोटी खोल देते हैं, पानी गिरने लगता है, पानी नॉन स्टॉप गिरता रहता है और आप मज़े से उसमें पानी को गिरते हुए देखते हैं. आप ब्रश करने जाते हैं, वॉश बेसिन में मुंह धुलते हैं, पानी खोल देते हैं, पानी गिरते रहता है वॉश बेसिन में और आप आराम से ब्रश करते रहते हैं. नहीं, आपको पानी को बचाना है, आपको पानी को सुरक्षित रखना है, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है. Together we can make a difference. The chore that children. These are some of things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resource? अभी आपने देखा है इस पूरी स्टोरी में मोना, राजू, मुस्तफ़ा, आयशा ने किस तरीके से ने रिसोर्स को बचाने के लिए प्रयास किया. आप किस तरह से बचाएंगे? क्या आप भी इस लिविंग अर्थ के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, पार्ट हैं. इट इज़ योर मोरल ड्यूटी टू कंजर्व रिसोर्स विदाउट एनी हेजिटेशन. You should start to conserve resource today and don't try to what किसी दूसरे पे टालिए, तुम बचाओ, मैं क्या करूं, मैं तो कर रहा हूं. इस तरह की चीज़ों को कभी मत सोचिए. बचाने का प्रयास करिए, चीज़ों को देखने का प्रयास करिए, जिससे आप नई जनरेशन को कुछ दे सकें. आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू रीड वन बाय वन एंड आई विल एक्सप्लेन इट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत. हिंदी इसकी बहुत टफ है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. कहता है कि सतत पोषणीय विकास, संपोषणी विकास की बात करता है. मतलब आप आसान शब्दों में समझिए. कहता है कि कुछ सिद्धांत हैं समावेशी विकास के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. क्या कहता है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करें. ये हमारी ड्यूटी है कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सेकेंड, improve the quality of human life. Third, conserve the earth, the vitality and diversity. Fourth, minimize the depletion of natural resource. Fifth, change personal attitude and practices toward the environments. And 6, enable communities to care for their own environment. Okay, I will explain it in Hindi because this is very important to understand you that what is the meaning of the principle of sustainable development. पहला कह रहा है respect and care for all forms of life.
जीवन के सभी रूपों का आपको आदर करना है और आदर के साथ देखभाल भी करना है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव के जीवन का मानव के जीवन में गुणवत्ता का विकास करना। डे बाय डे आपके अंदर अच्छे गुण आए, आपके अंदर अच्छे संस्कार आए, इनका विकास करना। थर्ड कहता है कंजर्व द अर्थ वेलिटी एंड द डाइवर्सिटी। पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। चौथा कहता है कि मिनिमाइज द डिप्लेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। पृथ्वी प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पांचवा कहता है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, अपने एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स इन्वायरमेंट के प्रति चेंज करना। और अंतिम कहता है इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करना चाहिए। ये हमारे प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो इसके आधार पे हम अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आई होप दैट यू विल गेट इट प्रॉपरली दैट व्हाट वी डिस्कस इन द चैप्टर। दिस इज वेरी small chapter, but this is very important chapter. You have to think about that, why we read this chapter. You should learn it. You should think in your mind that importance of the nature for human beings. You should think also that what you will give your next generation. आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को आप देखेंगे तो आप अंदर सुधार आएगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। आप नेचर के प्रति आपकी सम्मान बढ़ेगा। आप उनको कंजर्व करना, उनको सही से उनके उपभोग की बात करेंगे, कंजम्पशंस अपने रिड्यूस करेंगे, जो पानी को वेस्ट कर रहे हैं उसको रोकेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो घर से बाहर निकलते हैं जलते ही बल्ब छोड़ देते हैं उसको बंद करेंगे। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके नेचर के रिसोर्स को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे, ढेरों बात करेंगे आपके अगले चैप्टर में। ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर, आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर क्या है? चलिए कल के ऑनलाइन क्लास में आप मुझे ये बात बताइएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय एंड एडियो।